Hello and welcome back to my YouTube channel Finastro Cycles. My name is Nitin Bhandari and this is the latest update after 2 days of shift in psychology part 1 and part 2, which clearly mentioned about the focus was on bank nifty and banking stocks as the Mars changed the sign from a Virgo to a Libra, which is a ruling sign of banking and finance. So you see that here the Mars changed the sign. This is a 29 degrees and it changed the sign on this day in the evening. And market has rallied sharply, especially the bank nifty. So closing price of the bank nifty was 36,700 and today's close was 37,800. A superb 1,000 point rally in the bank nifty. So this is how the financial astrology or the Gann methodology becomes very important when you know what are the important turning points in the cycles. And when you mix these with the technical indicators, that become a super successful model. So enough for now and we start the analysis again. So Bank Nifty as mentioned, and I drew this line, this dark blue line, if you guys are watching it clearly, this is a double top zone. So Nifty made a Bank Nifty made a high 37,770 on the 16th of February and then crashed and it was hovering around and it took us such a long time to reach here. Now, there are people who told me that I should make the video with the Hindi and English. So I'll try and make this video in Hindi as well as I'll try and put some Hindi. I'll try and speak something in Hindi so the people, those who have the difficulty to understand in English, they will understand. तो जैसे कि हम बता रहे थे कि ये जो लाइन है ये डबल टॉप जोन था और ये हमको एक्सपेक्टेड था और जैसे ही निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने ये जोन तोड़ा ये इसका इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट पॉइंट था तब से ही ऐसा लग रहा था कि दिस विल ट्राई एंड गो आप ये ऊपर जाने की तैयारी में है अभी यहां से क्या है सो देर इज स्टिल मोर जूस यहां से और भी निफ्टी ऊपर जा सकती है टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ये और ऊपर जाएगी कम से कम मेरा टारगेट ये यहां तक का है 38,500 38,700 जोन तक का है ये एक पहला टारगेट है अगर बड़ा टारगेट देखे तो वो बहुत आगे तक आता है दैट इज टू मच बट अभी नहीं हम बात करेंगे उसके बारे में अभी हम सिर्फ शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करेंगे सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म बैंक निफ्टी हैज मोर juice on the upside it could go up to here at these levels though it is at the strong resistance point this is a Mars line here the ruling line Venus is coming here so these points may act as a small resistance though they are not a big resistance point they are a small resistance point because these are in the ruling sign so they may push it forward to the upside so ये देखने वाली बात है नाउ विल गो टू द निफ्टी अभी हम निफ्टी देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ है सो निफ्टी हम लोगों ने जैसे कि पिछले 4-5 दिनों के वीडियो में मैं बता रहा था कि निफ्टी ये कंसोलिडेशन जोन में है ये इस तरह की कैंडल्स जो होती है ये कंसोलिडेशन कैंडल्स होती है और उसके बाद ब्रेकआउट आता है और पास में भी ऐसा बार बार हुआ है तो उसी के बेसिस पे मैं 3 दिन पहले से बोल रहा था कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देने की तैयारी में अगर इसने ये लो तोड़ दिया होता तो कहानी कुछ और होती दिस वुड हैव बीन एट द डाउन साइड ये काफी नीचे आ जाता निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट पे है ये लाइन जो है जो जुपिटर प्राइस लाइन है और ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर आज कंपैरिजन देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज ज़्यादा मूव की है निफ्टी कम मूव की है क्योंकि निफ्टी पहले ही काफ़ी बढ़ चुकी थी निफ्टी इस लो से 380 से आज 600 250 280 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुकी थी सो अब यहां से क्या हो सकता है व्हाट इज नेक्स्ट इन द निफ्टी फ्रॉम हियर सो द स्टोकेस्टिक्स आर एट हाईली ओवरबॉट जोन 96 stochastics on my calculated modified stochastics it is highly overbought and I always give a caution on such a bull runs
सो इफ यू सी दैट द निफ्टी यहाँ पर भी 96 98 स्टॉकेस्टिक्स था, यहाँ पर भी 96 98 स्टॉकेस्टिक्स था। तो जब जब ऐसा हुआ है तब तब निफ्टी एक कंसोलिडेशन में चली गई है और ये स्टॉकेस्टिक्स कूल ऑफ हो गए हैं, थोड़ा इनका लेवल नीचे आ गया है और उसके बाद नया रैली शुरू हुआ है। सो तब तक अभी निफ्टी में बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। निफ्टी का बड़ा रिवर्सल डेट आ रहा है जो कि अभी 28 सितंबर है। और करंट साइकिल का अगर हम रिवर्सल देखते हैं तो करंट साइकिल का रिवर्सल डेट जो आ रहा है, सो करंट साइकिल का रिवर्सल डेट जो यहां से शुरू हुई है, इसका भी रिवर्सल डेट करीब वही 27-28 सितंबर के आसपास आ रहा है। सो मंथ एंड में रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज आ रही है निफ्टी में। और अगर हम बड़ी साइकिल देखते हैं, द बिगेस्ट साइकिल विच जो कि पहले की इससे पहले वाली साइकिल है, वहां से अगर हम देखें तो कहाँ रिवर्सल आता है। सो वहां से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा रिवर्सल पास में आ जाएगा, दैट वुड बी नियरेस्ट इज द 21st 22nd। सो बहुत सारी साइकिल्स मर्ज हो रही है, टेक्निकल इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ कॉशन यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ मैं शॉर्ट करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग टू शॉर्ट एनीबडी हियर, आई एम टेलिंग अ कॉशन ऑन द लॉन्ग साइड। बुक द प्रॉफिट इफ यू आर लॉन्ग, वेट फॉर शॉर्ट। शॉर्ट करने के लिए जैसे कि पहले के वीडियो में भी बताया है, यू हैव टू लुक एट द डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। निफ्टी यहां से अभी तक एक भी दिन डेली सपोर्ट के नीचे बंद नहीं हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब साइकिल टर्न डाउन होगी। सो ये वॉच करना बहुत जरूरी है। नाउ विल गो फॉर द स्टॉक्स वन बाय वन, विल गो द स्टॉक्स एंड नाउ आई विल गो बाय माय लिस्ट ऑफ स्टॉक इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द पैटर्न, बिकॉज सम स्टॉक्स आई मे मिस, कुछ स्टॉक भूल जाते हैं, रह जाते हैं। और मैं ये सारे वीडियोस लाइव बनाता हूँ, मैं कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। So I go with the flow, I go with the analysis. So now we'll go with the start with the Axis Bank. Why I chose the Axis Bank? Because this is a stock. ये stock मेरे रडार में आज आया है। ये गैन ट्रेंड चेंज पॉइंट से बेरिश से बुलिश टर्न हुआ है आज। सो ये वीडियो मैंने एक्सिस बैंक को इसलिए ही ऐड किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक कैन बी अ नाउ न्यू हीरो एज वी पिक्ड अप इंडसइंड, कोटक, आईटीसी, एसबीआई जो हमने पिछले वीडियोस में उठाए थे स्टॉक्स। तो आज मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक जो है एक नया स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ऑन अपसाइड। इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा बिलो 790। बिलो 790 अगर ये वापस जाता है देन इट विल अगेन गो इनटू द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, ये बेरिश हो जाएगा बुलिश से। टेक्निकल इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं इसमें काफी अपसाइड का जूस है, काफी ऊपर जा सकता है। नाउ नेक्स्ट विल बी एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक में भी काफी जूस है। अगर मैं ये इसको एडिट कर देता हूं तो टेक्निकल पिक्चर यहां से चेंज हो जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। सो ये एक बड़ा समस्या है उस दिन के फ्रीक ट्रेड के कारण। अभी भी ऑन शॉर्ट टर्म ये नहीं लग रहा है कि इसमें ऊपर जाने की चांसेस है, बट ये गैन ट्रेंड चेंज पॉइंट पे, जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1545 1547 एंड one can go long at these levels and that's what has happened, that it started moving up। यहाँ से काफी बड़ा मूव किया है और ये जो कैंडल है ये एनगल्फिंग कैंडल है। अगर आप देखोगे इसको मैं एनकेप्सुलेट करता हूं तो इस कैंडल ने पिछले 2 वीक की मद्दी को पिंच कर दिया है। तो ये जो मद्दी का बलून था ये कैंडल ने फोड़ दिया है। सो दिस कुड बी अ पोटेंशियल अपसाइड टारगेट और इट कुड लीड द बैंक निफ्टी। ये एक स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लीड कर सकता है। नाउ एचडीएफसी की तरफ बात करते हैं। एचडीएफसी इज अगेन निफ्टी 50 स्टॉक, निफ्टी 50 हेवी वेट स्टॉक जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में। तो ये हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है, व्हाट इज हैपनिंग हियर।
एंड अगर यहाँ देखेंगे तो स्टिल इट इज शोइंग अ बेरिश जोन, अभी भी ये बेरिश ही है। लेकिन अगर हम आवरली चार्ट पे देखें तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपसाइड का जो है जूस दिखता है। लेट्स सी इफ इट इज देयर और माय मेमोरी इज रनिंग आउट। यस, सो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट अपसाइड जूस दिख रहा है। ये कैंडल्स जो दिख रही हैं ये काफी अच्छी कैंडल है एंड दिस लुक्स लाइक ये ऊपर जाना चाहता है। लेकिन डेली पे अभी भी इसको प्रॉब्लम है। स्टिल इट इज नॉट हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन द अपसाइड। लेकिन आवरली पे थोड़ा सा है, सो वन हैज टू बी केयरफुल ऑन द शॉर्ट साइड। देन लेट्स गो टू द न्यू वन विच इज आईसीआईसीआई बैंक। ये मेरा नया एक आज के लिए है क्योंकि आईसीआईसीआई ने वही सब पैटर्न दे रहा है जो पैटर्न इसके पहले दूसरे स्टॉक्स दे रहे थे। सो आईसीआईसीआई इज अगेन मूविंग अप, इट शोड अ गुड एनगल्फिंग मूव और ये काफी यहाँ से ऊपर आया है, यूरानस लाइन से ऊपर बंद हुआ है। देयर इज अ पोटेंशियल टू गो टू 740 टुमारो और मे बी ऑन द मंडे ट्यूसडे बिकॉज दिस कुड बी a strong potential for upside. Technical indicators are clearly suggesting that they have entered into bullish zone today only. So ICICI is the one of the stock which one should look at. IndusInd is done dusted. IndusInd was our pick long back, but today it has been done. Still it has a juice on the upside. अभी भी इसमें काफी ऊपर जाने की संभावना है। It is not done. ये ऊपर जा सकता है पर मैं इस लाइन के 1118 1120 मेरा ट्रेलिंग स्टॉप है, उसके नीचे गया तो देन मे बी आई विल कट माय पोजीशन। देन वी गो टू द इन्फोसिस। जैसे कल मैंने बताया इन्फोसिस इज लुकिंग फॉर अ रैली, ये कोशिश करेगा ऊपर आने की एंड दिस विल बी द पार्ट दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द रीबैलेंसिंग इन द निफ्टी 50। बट कल की रैली के बाद आज ये जो है एकदम नीचे आ रहा है। कोशिश किया है इसने ऊपर जाने का बट इट गॉट सोल्ड आउट एट द ऑन द टॉप साइड। सो 1680 1680 के नीचे ये वापस से ट्रबल में आ सकता है। जब तक हो सकता है ये थोड़े दिन और कंसोलिडेट करे बिफोर मूविंग शार्प डाउन। देन वन ऑफ द फेवरेट्स आईटीसी। अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं और आपने ट्वीट देखा है तो आईटीसी आई वाज ट्वीटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। आई वाज अराउंड 210 वी स्टार्टेड ट्वीटिंग बिकॉज इट वाज शोइंग लॉन्ग कंसोलिडेशन एंड उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था और एक दिन में देखिए क्या मुंह दिया है। अभी भी इसमें थोड़ा जूस और है अपसाइड पे। पॉसिबिलिटी है कि 240 240 के आसपास इसको ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफी दिखती है। और अगर मैं एक्सपेंशन देखता हूँ फिबोनाची एक्सपेंशन लास्ट लेग का तो उस हिसाब से भी इसमें इसने 138% इसने मुंह दे दिया है और इसके ऊपर ये कितना और मुंह दे सकता है। अगर मैं 150 और 168% लेता हूं तो वो मुंह भी दे दिया है। तो अब इसका सीधा टारगेट जो है 2 रेशो ऑफ द फिबोनाची और 2 रेशो और 2 पॉइंट 2 और 2.5 ले लेता हूं क्योंकि रेंज काफी बड़ी दिख रही है इसमें। सो 2 एंड इट इज अ 237 विच इज नियर टू 240 लाइन ऑफ प्लेनेट रूलिंग द आईटीसी एंड और अगर ये चला तो 250। अभी इसमें थोड़ा जूस और है, देर इज लॉट ऑफ अपसाइड पोटेंशियल स्टिल इट इज देयर। सो मे बी इट विल कंसोलिडेट सम टाइम एंड देन मे रैली। इसके बाद इंपॉर्टेंट वन मोर कोटक बैंक जो कि काफी दिनों से हमारे रडार में था और 3 दिन 4 दिन पहले ही हमने ऐड किया था और ये बहुत शार्प रैली किया है। इट हैज रैलीड वेरी शार्पली एंड इट हैज gone above this freak trade high of 11 June. That was a day when there was a freak trade 1880 का, उसके अबो है। सो एज लॉन्ग एज ये 1880 के ऊपर है देर इज अ पोटेंशियल ऑफ 1960। उसके ऊपर इफ आई पुट अनदर पोटेंशियल दैट गोज टू 2000 इज अ इम्पॉर्टेंट ज्ञान साइकोलॉजिकल लेवल। डब्ल्यू डी ज्ञान हमेशा ये जो राउंड फिगर्स है इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 2000 लेवल जहां पे ये थोड़ा थक सकता है। बट यहाँ पर भी क्योंकि स्टोकेस्टिक्स काफी ऊपर है तो यहाँ तक आते आते ही इसमें काफी एक्सर्शन दिखेगा। Now, another important stock is Reliance. So, Reliance का
कल हमारा क्या व्यू था और आज इसमें क्या हुआ है। तो अभी देखते हैं हम। ये रोज करना पड़ रहा है क्योंकि ये फ्रीक डाटा है और मेरा सारा टेक्निकल गड़बड़ होता है। सो रिलायंस में जैसे कल ये इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉइंट था, अगर आप फिर से कल का वीडियो देखोगे तो ये यहाँ पे दिस वाज अ रिवर्सल कैंडल एंड आई मेंशन्ड अबाउट दिस कि दिस कैंडल इज अ रिवर्सल कैंडल, देयर इज समथिंग इज कुकिंग अप एंड दिस कुड बी समथिंग कैन हैपन। यूजुअली मार्केट जब भी प्रीवियस डे के लो को तोड़ के वापस उसके ऊपर आ जाए, सो इट ब्रोक द लो ऑफ यस्टरडे एंड इट बाउंस बैक। इसने कल का लो तोड़ा और उसके ऊपर आ गया, दैट वाज द फर्स्ट सिग्नल टू बाय द रिलायंस टुडे। आज ये क्लोज किया है मार्स लाइन पे, ये 360 डिग्री लाइन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। कल के वीडियो में भी बता रहा था मैं, यहां तक के चांसेस थे, बट उसके बावजूद ये जो है अभी ये 90 डिग्री लाइन पे है, इसका रिवर्सल डेट आ रहा है। सो ये कोशिश निफ्टी को बैलेंस करने के लिए ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। दिस इज अ 21 सितंबर, 21 सितंबर तक का इसका डेट है जो कि ऊपर की साइड का पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। प्राइस वाइज अगर हम देखें तो ये कितना ऊपर जा सकता है, अगर हम इस साइकिल लो से यहाँ का लो लेंगे तो ये बहुत ऊपर का टारगेट देगा, लेकिन अभी हम टाइमिंग देखेंगे कि ये डबल टॉप जोन तक क्या करता है, 2485, उसके ऊपर ये फर्दर डायरेक्शन देगा। बट लेकिन अगर ये इसके ऊपर गया 2485 के ऊपर, देन दिस कुड बी ए सुपर बुलिश, देन इट विल गो सुपर सुपर बुलिश, दिस हैज अ पोटेंशियल टू रैली शार्पली। इसके नीचे, इस लो के नीचे ये गया तो वापस से खराब हो जाएगा, जब तक के लिए इसमें थोड़ा सा जूस है अप साइड का। नाउ आफ्टर द रिलायंस अगेन वन ऑफ द स्टॉक विच वी पिक्ड, एसबीआई। हमने एसबीआई को यहां पर पिक किया था समवेयर हियर, ये कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था 2 दिन पहले, और जैसे ही मार्स ने साइन चेंज किया वी स्पोक अबाउट दैट कि शिफ्ट इन द साइकोलॉजी होगा, शिफ्ट इन द साइकोलॉजी। और ये यहाँ पर एग्जैक्टली इस लाइन पे आके रुका है जो कि इसकी प्लेनेटरी प्राइस लाइन है 467, ये डबल टॉप जोन भी है। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा और जूस है इसमें, ये कल और कोशिश करेगा, एक और ऊपर का ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर ये एक एक प्लेनेटरी प्राइस लाइन जैसे रिले रेस होती है उस तरह काम करती है, वो एक जोन से दूसरे जोन को ट्रांसफर कर देती है पावर और एनर्जी। सो ये लाइन 474 473 की लाइन जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी कल के लिए। देन एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट, यस, टीसीएस वेरी इंपॉर्टेंट। टीसीएस को देख लेते हैं, टीसीएस में क्या हुआ है। सो टीसीएस अगेन उस दिन का ये फ्रीक ट्रेड था, इसको भी एडिट कर लेते हैं। और ओके okay, so low was this is a high, why it is not okay, close was 3855, okay, so 3898 था, ये 3898 और इसको एग्जिट किया। सो टीसीएस में अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, आज की कैंडल भी प्रॉब्लमेटिक है। टीसीएस लगता है कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें सीरियस प्रॉब्लम इस हाई के नीचे जाने पे होगी, 3893 के नीचे देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ। और ये कैंडल टॉपिश कैंडल है, ये कैंडल टॉपिश कैंडल है, एक दिन फ्री रॉन्ग फेक मूव दिखा रहा है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ स्टॉक आई वुड prefer for shorting, but I'll wait for a clear short signal, though it has given a signal today, but I'll wait below this point. So till then I will not short it, but I'll be cautious on this on the long side. So this is all about all the stocks. I think mostly we covered, and this is what is happening in the Nifty and Bank Nifty, and this is the shift in the psychology. जो मैं shift psychology और shift की बात कर रहा था 2 दिन से, वही हुआ है। Bank Nifty has outperformed, the PSU stocks have outperformed. Uh, there is a lot of news about all these things, but we don't follow that news. मैं news पे नहीं जाता हूँ, I go on the psychology, I read the energy in the sky कि sky में क्या हो रहा है, and based on that I take my calls. So this is all about all the stocks right now. There's one more stock in my list, let me
quickly tell what is happening on the HUL. HUL is again a heavyweight. It has a 3 or 4% weightage in the Nifty, if I'm not wrong. Maybe, but it is a heavyweight. It is a one of the top 10 stocks. जो top 10 stocks Nifty के उसका एक stock है. So HUL में 2735 ये बहुत important zone है. ये वीकली गैन ट्रेंड चेंज पॉइंट है. अगर इसके नीचे जाता है तो देन देयर इज अ ट्रबल. ये कैंडल्स सेल ऑफ कैंडल्स हैं. ये सारी कैंडल्स जो हैं सेल ऑफ कैंडल्स है. इसमें से एक भी कैंडल बुलिश नहीं है. तो या तो ये कंसोलिडेट कर रहा है या ये तैयारी में है टूटने की. अगर ये वापस ऊपर जाएगा तो क्या हो सकता है, तो इसका हम आवरली चार्ट देख के पता कर सकते हैं कि ये कल ऊपर तो नहीं जाने वाला है. So still on the hourly chart, this is a 60-minute chart, and on the 60-minute chart, still it is showing a downtrend. You can see here now. आप इतने दिनों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो थोड़ा तो आपको समझ में आने लगा होगा कि स्टोकेस्टिक्स का क्या मतलब होता है. सो स्टोकेस्टिक्स बेरिश जोन में एंटर हो चुके हैं और ये सारी आवरली कैंडल्स बेरिश कैंडल्स हैं. So there is a danger on the Hindustan Lever for downside. So one has to be careful on this. There's one more stock. Let's go and see Hiromoto. This stock was on my radar. I not given a call on this, but this stock has given a breakout yesterday. These blue candles are the breakout candles. So actually it was on the radar from this level. So ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, दूसरा ब्रेकआउट दिया और ये रैली कर गया. नाउ इट इज ऑन द यूरानस प्राइस लाइन. सो यूरानस प्राइस लाइन जो है, यूरानस प्राइस लाइन जो है वो ब्रेकआउट के लिए जानी जाती है. अगर इसका हम स्टोकेस्टिक्स देखें तो ये काफी ओवरबॉट हो चुका है. दिस इज इन द ओवरबॉट जोन, बट स्टिल इट विल गिव वन मोर अपसाइड. मे बी इट विल ट्राई एंड टच 3000, अ साइकोलॉजिकल मार्क, जो कि मैंने बोला WD Gans साइकोलॉजिकल मार्क, राउंड फिगर्स. So, and this zone, if you see, it is a supply zone. Here a lot of trading has happened in the past, so it may find a strong resistance at these levels. So this was all about all the stocks which mostly I have covered, and this is how I do my research, and I am happy to share with you guys. मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने के लिए मुझे I feel good कि I should share with this. This is a knowledge of astrology. This is the power of astrology. This is a hidden knowledge. This is an Indian knowledge. It went to the Western world and they developed it in a big way. So now my motto is to spread this again to our people. So this is all for today for Nifty, Bank Nifty, and all other stocks. Stay safe, stay healthy. Thank you for watching and subscribing. Thank you so much.